دوسروں کی ذمہ داریوں کی جواب دہی اسلام نے کسی انسان کے سر عائد نہیں کی ہے، اور اس بات کا بھی اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا کہ کسی انسان کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے حقوق کو ادا کرتا ہے لہذا آپ اس کے حق کو ادا کیجیے۔ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے دو دلائل پیش کرنے کی کوشش کروں گا جن کی روشنی میں آپ میری بات کو سمجھ سکیں گے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں میں پیش کر رہا ہوں بلکہ ان باتوں کو آپ نے بارہا سماعت کیا ہوگا۔ پہلی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لیس الواصل کالمکافی، رشتے کو جوڑنے والا انسان بدلہ دینے والے کی طرح سے نہیں ہے، کہ اگر دوسرا ہم سے قریب ہوتا ہے، ہمارا رشتہ جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تب ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں بدلے کے طور پر۔ اگر بدلے کے طور پر آپ نے صلہ رحمی کرنے کی کوشش کی تو گویا آپ رشتہ جوڑنے کے ثواب کو، اس کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ لوگوں کی حماقتوں کا، ان کی نادانیوں کا، ان کی جہالت کا جواب جہالت اور نادانی کے ساتھ نہیں بلکہ حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کا جواب دینا ہوگا۔ ایک انسان آپ سے رشتہ کاٹتا ہے، آپ اس کا رشتہ جوڑنے کی کوشش کیجئے، اور اس کا فائدہ آپ جانتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، آپ پریشان ہوئے، اپنی بیوی خدیجہ کے پاس آئے اور پورا واقعہ وہاں سنایا، تو خدیجہ نے جو ایک ہونہار خاتون تھیں اپنے شوہر کو اطمینان دلاتے ہوئے جن باتوں کو پیش کیا تھا، ان باتوں میں ایک بنیادی بات یہ تھی انک لتصل الرحم، یقینی طور پر آپ رشتہ جوڑتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے کٹنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ان کو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں، اور جس شخص کے اندر یہ خوبی ہو اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر ہمارے اوپر ایسے حکمراں مسلط کر دیے جائیں، ایسے خلفاء مقرر ہو جائیں، ایسے ذمہ دار اور نگہبان ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں جو اپنے حقوق کا ہم سے مطالبہ کریں لیکن ہمارے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش نہ کریں یا ہمارے حقوق کو ادا نہ کریں۔ ذرا سوال پہ آپ غور کرو، ایسے حکمراں جو ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں لیکن ہمارے حقوق کو ادا نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے کہا تھا ادّو الیہم حقوقہم وصلوا اللہ حقکم، تم ان کے حقوق ادا کرو اور اپنے حقوق کا مطالبہ اللہ رب العالمین سے کرو۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ یہ دین اسلام انفرادی حیثیت کا دین ہے، اور یہ دین ہر شخص کو خطاب کرتا ہے اس کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں، لہذا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے فرائض کو انجام دینے کی ہم کوشش کریں، اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے لوگ اگر ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حقوق تلفی جو کی جائے گی اس حقوق تلفی کے نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں شادمہ رکھے گا، اور آخرت میں اللہ رب العالمین یقینی طور پہ اس کا بدلہ دے گا۔ یہ حدیث آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین ایک ایسا موقف تیار کرے گا جس میں ہر انسان کو ان کے احسانات کا بدلہ دیا جائے گا، ہر انسان کو ان کے مظالم کے تعلق سے فیصلہ سنایا جائے گا، اور ایک انسان جو مظلوم تھا دنیا میں
اور اس نے صبر کیا تھا، آخرت میں اللہ رب العالمین ظالم کو حاضر کرے گا، ظالم سے ظلم کا بدلہ دلایا جائے گا، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں بچیں تو مظلوم کی برائیاں ظالم کے سر ڈال دی جائیں گی، اور مظلوم کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا، لیکن ظالم جہنم رسید ہو جائے گا۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ رب العالمین کے سامنے، قانون کے سامنے اپنے حقوق کو ادا کرنے کا ذمہ دار ہے، اور ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کا اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ میں بات انتظامیہ سے شروع کروں یا طلبہ سے شروع کروں، لیکن چونکہ طلبہ میرے مخاطب ہیں اور انتظامیہ یا اساتذہ کرام میرے بڑے ہیں، ان سے میں بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکتا، لیکن طلبہ کے سامنے چونکہ وہ میرے بیٹے کے درجے میں یا بھائی چھوٹے ہیں، اس لیے بہت صاف طور پہ میں ان کے لیے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جن باتوں کی مخاطب ہماری طالبات ہیں جو یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ ایک طالبہ کا، ایک طالب علم کا تعلق ایک استاد اور معلم سے کیسا ہونا چاہیے۔ اسلام نے کن آداب کی تعلیم دی ہے، جن آداب کو بروئے کار لا کر ایک متعلم اپنے استاد کے ساتھ پیش آئے، یا اسلام نے طلب علم کو کتنا بڑا درجہ دے دیا کہ ایک طالب علم اپنے معلم کے ساتھ کس طرح پیش آئے۔ آپ اگر اس سلسلے میں بات کریں یا سوال کریں تو بہت ساری باتیں ہیں، جو باتیں یقینی طور پر ہم اور آپ کے لیے بڑی عبرت کی ہیں، خصوصاً طلبہ جو بڑے طلبہ ہیں، جو میری بات سمجھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میری بات کو غور سے سماعت کریں اور اپنی زندگی میں اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ کامیاب عالم، کامیاب انسان، کامیاب داعی اور کامیاب مبلغ بن سکیں۔ آپ سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے چند صحابہ کرام کا انتخاب کیا تھا، اور جن صحابہ کرام کا انتخاب نبی نے قرآنی تعلیم کے لیے کیا ہو، اس سے بہتر معلم امت کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی معلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دے دی کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کی تعلیم دے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ بخاری کی روایت آپ نے سنا ہوگا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرے۔ تو سیکھنے کے اعتبار سے اور سکھانے کے اعتبار سے یہ دونوں گروہ اللہ کی نظر میں انتہائی معتبر گروہ ثابت ہوا۔ یہ دونوں جماعت روئے زمین کی بہت برگزیدہ جماعت ثابت ہوئی، لہذا وہ طلبہ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے دینی اداروں کا انتخاب کیا، یا جن کے والدین نے دینی تعلیم کے حصول کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ اب ایسے طلبہ اور طالبہ کو چاہیے کہ اپنے نیک عزائم کو حاصل کرنے کے لیے ان اسباب کو اختیار کریں جن اسباب کا اختیار کرنا انہیں کامیابی سے دوچار کرے گا۔ ابھی میں نکل کے درس میں بتایا تھا کہ بڑی بلندیوں کے حصول کے لیے بڑی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اگر اسلام نے قرآن کی تعلیم اور تعلم کو سب سے بہتر عمل قرار دیا تو اس عمل کا کچھ تقاضا بھی ہے۔ اگر اس تقاضے کو ہم پورا کریں گے تب اس خیریت کے مصداق بنیں گے، وہ بہتری ہماری زندگی میں پائی جائے گی، اور اگر اس کے تقاضے کو ہم پورا نہ کریں تو یقین جانو ہم اس نیکی کو، اس درجے کو حاصل نہیں کر سکیں گے جو درجہ اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ کیا یہ بات کسی طالب علم کے لیے کافی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، یقال لصاحب القرآن ارقی اقرا اقرا ورتقی، تم پڑھتے جاؤ، منزل طے کرتے جاؤ، اور تمہاری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں پر تم قرآن کو ختم کرو گے۔ یہ بڑا انعام ہے، بہت بڑی بخشش ہے، اور صرف ایک انعام نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب میت کو دفنانے کے لیے کئی لوگوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کا معاملہ مرحلہ پیش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مقدم کیا؟ ذرا غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کو مقدم کیا، اور آپ نے کہا کہ سب سے پہلے اس شخص کو رکھا جائے جو قرآن کا زیادہ عالم ہو۔ معلوم یہ ہوا قرآن کا علم، سنت کا علم،
इंसानों को मुकद्दम कर देता है, इंसानों के दर्जात को बढ़ा देता है। लिहाजा हमें ये फजीलत अपने दिमाग में रखकर हुसूल इल्म की कोशिश करनी होगी। मैं आपसे कह रहा था कि एक तालिब इल्म मुअल्लिम के सामने किस तरह पेश आए। इस सिलसिले में 2-3 वाक़यात जो सही असानीद के साथ साबित है उन्हें मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहला वाक़या आप जानते हैं कि मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि ज़ैद बिन साबित जो कुरान के मुअल्लिम थे, नबी ने जिनको सनद दिया था, तो ज़ैद बिन साबित से थोड़ा इल्म हासिल किया था इब्न अब्बास ने। इसीलिए इब्न अब्बास ज़ैद बिन साबित की सवारी की नकील को पकड़कर चलते थे। और ये नकील को पकड़कर चलना, लगाम को पकड़कर चलना, ये बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो बात बयान की उसके बाद वो बात बड़ी अजीम है। उस बात पर तलबा को गौर करना चाहिए, तालिबात को गौर करना चाहिए कि एक तालिब इल्म और एक तालिबा अपनी मुअल्लिमात के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करे ताकि वो कामयाबी से हमकिनार हो सके। इब्न अब्बास कहते हैं, हाकदा उमिरना अन नफ़अला लिउलमाइना व कुबराइना, हमें इसी तरह का हुक्म होता था कि अपने बड़ों के साथ, अपने मुअल्लिमीन के साथ पेश आएं, यानी उनको आराम पहुंचाने की कोशिश करें, उनकी सवारी की नकील या लगाम पकड़कर चलें ताकि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। और सिर्फ ये बात सहाबे किराम के माबैन रवाना थी, बल्कि ताबईन और तबा ताबईन में अगर इसकी मिसालें आप ढूंढें तो बहुत सारी उसकी मिसालें हैं। लेकिन वक्त चूंकि तवील नहीं कि मैं आपके सामने उस बात को तफसील से रखूं, अलबत्ता 1-2 बातें मैं मिसाल के तौर पर पेश करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि दुनिया में अइम्मे अरबा बड़ी शोहरत के हामिल हैं। उन चारों इमामों में इमाम मालिक का दर्जा और रुतबा आपसे मख्फी नहीं। हदीस से मोहब्बत, हदीस की तदरीस और तालीम का शगफ उस मुहद्दिस की ज़िंदगी में ऐसा था कि मदीने से बाहर निकलना अपने लिए रवानी समझते थे, इल्ला कि उम्रा और हज करने की बात हो। ये मदीनतुर रसूल से सच्ची मोहब्बत थी और हदीस के नशो इशात का जो जज्बा था उसका तकादा था कि मदीने से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। बहरसूरत उनके शागिर्द इमाम शाफी हैं। इमाम शाफी अपने उस्ताद से इल्म के हुसूल के लिए जब दर्स में बैठते थे तो उनका तरीका क्या होता था, उनका आलम क्या होता था। वो कहते हैं, वल्लाही मा तसहफ्तु अल मुसहफा बैन यदै मालिक इल्ला सफहन रकीका हैबतन लहू लिअल्ला इस्मा वक़अहा। मैं जब भी इमाम मालिक के सामने होता तो किताब के वरक को बड़े आहिस्ता से पलटता था। क्यों? इमाम मालिक की हैबत थी, उनका अदब व एहतराम था। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वरक पलटने की वजह से वो आवाज़ सुन ले और उनकी तवज्जो मेरी जानिब हो जाए और जो एक सिलसिला था तवारुद का वो मुनक़ता हो जाए। ये इमाम शाफी रहमहुल्लाह का मामला इमाम मालिक के साथ था। और जब इस तरह रवैया शागिर्द ने उस्ताद के साथ बरता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस उस्ताद को, उस शागिर्द को कितना अजीम बनाया कि उस उस्ताद, जब वो शागिर्द उस्ताद हुआ तो उसके तलामिदा अपने उस्ताद के साथ क्या मामला रवा रखते थे। आप उस बात को जरा सुनिए। रबिया इमाम शाफी के शागिर्द हैं। रबिया बयान करते हैं, वल्लाही मजतरातु अन अशरबल मा वश्शाफिई यंजुरु इलैया हैबतन लहू। अल्लाह की कसम, इमाम शाफी के सामने पानी पीने की मेरे अंदर जुरात न थी कि इमाम शाफी मेरी जानिब देखते हों और मैं पानी पीऊं। इमाम शाफी का ये अदब किसके ذہن में था? एक तालिब इल्म के ذہن में था जिसे दुनिया रबिया जानती है। और रबिया की हैसियत, इल्मी शख्सियत आप इन उलमाए किराम से पूछेंगे तो हमारे मशाइख बताएंगे कि रबिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बुलंद किया। बहरसूरत ये उस्ताद और शागिर्द के माबैन ताल्लुक़ की बात थी। और अगर इसी कबील की बात आप सुनना चाहते हो तो मैं बताऊं आपको कि हमारे असलाफ अपने शागिर्दों के साथ किस तरह का मामला रवा रखते थे और उस मामले को रवा रखना, जायज़ रखने में उनके सामने दलील क्या थी।
आपने सुना होगा अब्दुल्ला बिन अहवस से मरवी हदीस को, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लैस मिन उम्मती मन लम युजिल कबीरना व यरहम अला सगीरना व यारिफ लिआलिमिना हक्का। मेरे उम्मत से उस इंसान का शुमार नहीं जो बड़ों की ताज़ीम न करे, बड़ों का एहतराम न करे, और जो शख्स छोटों पर शफकत ना करे। मालूम ये हुआ कि ये मोहब्बत का माहौल, ये एतमाद का माहौल और ये आपसी ताल्लुकात उसी वक्त इस्तिवार होंगे जब तरफैन से इस तरह का मामला रवा रखा जाए। बड़े छोटों के साथ शफकत से पेश आएं, छोटे बड़ों का एहतराम करें। कोई गलती अगर सरजद हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि उस गलती को आप महमूल करें कि बेअदब है, सूए अदब उसके ज़िंदगी में पाया जाता है, बड़ा गुस्ताख है, एहतराम नहीं करता, बदखुल्क है। ये तमाम के तमाम कलिमात बसा औकात एक उस्ताद की शख्सियत को मजरूह करने के साथ साथ किसी तालिब इल्म की तालीम से दूरी का सबब बन जाते हैं। लिहाजा इस्लाम ने हमें इस बात की तालीम दी कि हम लोग सब्र व मुरव्वत को, बर्दाश्त को, अनात और हिल्म को, बुर्दबारी को इख्तियार करें। फैसले करने में जल्दी ना करें, जवाब देने में बड़ी सुरात और तेज़ी ना पाई जाए, बल्कि सोचें किसी बात को और उस बात को सोचने के बाद फिर जवाब देने की कोशिश करें। अगर ऐसा माहौल तलबा की ज़िंदगी में, असातिज़ा की ज़िंदगी में और इंतज़ामिया में पाया जाए तो इदारा, मैं समझता हूँ, तरक्की से दो चार और हमकिनार हो जाएगा। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ताल्लुक़ से कि नबी ने कहा, ऐसे शख्स का शुमार हमारी उम्मत से नहीं होगा जो हमारे उलमा के हुकूक को न पहचाने। तो उलमा के हुकूक की मारिफत, उलमा के हुकूक की रियायत तलबा की ज़िंदगी में खुशगवार माहौल पैदा करती हैं। लिहाजा तलबा को चाहिए कि अपने मुस्तक़बिल पर नज़र रखते हुए असातिज़ा के हुकूक की रियायत करें, उलमा के हुकूक को पहचानें। क्यों? इसलिए कि अगर तेज़ी में आकर, उजलत में आकर, हिमाकत में आकर और तहव्वुर में आकर आपने कोई फ़ैसला लिया तो यकीन जानो, अरबी की कहावत है, मल्लम यतहम्मल ज़िल्ला अल-इल्म साआ यबका फ़ी ज़ुल्ली अल-जहली तूल अद-दहरी। जो शख्स इल्म की ज़िल्लत को एक घंटे के लिए, एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं करता, ऐसा इंसान जहालत की ज़िल्लत में, जहालत की तारीकी में पूरी ज़िंदगी बाकी रहता है। मैंने देखा अपने तालिब इल्मी के ज़माने से लेकर अब तक बहुत से तलबा हैं, अपनी हिमाकत के नतीजे में थोड़ी सी बात पेश आ गई इदारे की जानिब से या असातिज़ा की जानिब से, फ़ौरन जज्बात में आए, फ़ैसला लिया कि मुझे नहीं पढ़ना है, मैं चला जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आप जान लो कि इस तरह के तलबा आज हमारी निगाहों के सामने आते हैं। जब मिलते हैं तो निदामत के अलावा और कुछ उनके हाथ नहीं आता। क्यों? आप तालीम छोड़ देने के बाद नुकसान किसका करोगे? आप तालीम या स्कूल छोड़ने के बाद नुकसान किसको पहुंचाओगे? बहुत से तलबा हैं, अपने गार्जियन, अपने वालिदैन से कहते हैं, मुझे फ़लाँ मोबाइल नहीं मिला तो मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मुझे इतना पैसे आप नहीं दिए तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। पढ़ाई छोड़ देना, तालीम से दूर हो जाना, नुकसान किसका है? अगर आप मुस्तकबिल पे नज़र रखें तो नुकसान आपका है। क्यों? इदारे बहुत सारे हैं, तलबा बहुत सारे आते हैं और जाते हैं, तालिबात बहुत सी दाखिला लेती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इदारे को नुकसान नहीं होता। हाँ, उनकी शख्सियत मुस्तकबिल में तारीख हो जाती है, उनकी ज़िंदगी अंधेरे में गुजरती है। लिहाजा सब्र एक तालिब इल्म की ज़िंदगी का जौहर होना चाहिए, और जो तालिबा सब्र नहीं करती, ऐसी तालिबा को जानना चाहिए कि वो पूरी ज़िंदगी जहालत और नादानी में गुजारेगी, तालीम का असर उसकी ज़िंदगी पर नहीं होगा। तो मैं आपसे बयान कर रहा था, अज़ीज़ तलबा और असातिज़ा किराम, ये जिम्मेदारी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी है बहुत अज़ीम है। उसकी आज़मत का तकाज़ा ये है कि अपने सीने को कुशादा करो, अपने पहलुओं को कुशादा रखो, अपने जहन में वसात रखो, और बच्चों के तई हमारे अंदर ये एहसास होना चाहिए कि ये बच्चे हमारे ग़ुलाम नहीं, हमारे महकूम नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अमानत हैं। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं,
یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے سپرد کیا ہے. اگر ان کی بہترین تربیت ہمارے ذریعے ہوئی تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اور مستقبل میں ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے بہت سارے آرام پہنچانے کا سبب بنے. لہذا طلباء کے تئیں شفقت، طلباء کے تئیں مروت اور طلباء کے تئیں نرمی کا برتنا یہ کامیاب مدرس کی علامت اور دلیل ہے. طلباء کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اساتذہ کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، ان کی باتوں کا جواب دینے سے بچیں، ان کے حکم کی تعمیل کریں. اور اگر کوئی استاد کسی طالب علم کو کبھی ڈانٹ دے، جھڑک دے، کبھی مار دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دشمنی اس سے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی توہین کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی تنقیص اس کو مطلوب ہے، بلکہ آپ سے محبت، آپ کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے آپ کو ڈانٹا جائے گا، آپ کی تادیب کی جائے گی، آپ کو سزا دی جائے گی اور ان سزاؤں کو جھیلنے کے بعد آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہوگا. لہذا آپ غور کرو کہ آپ کے استاد آپ کو ڈانٹتے کیوں ہیں، آپ کو کیوں گھر جانے سے روکتے ہیں، باہر نکلنے سے کیوں منع کرتے ہیں، اور پھر وقت کی پابندی کا آپ کو مکلف کیوں کرتے ہیں. انہیں کیا اس سے لینا دینا ہے سوائے اس کے کہ آخرت میں انہیں اس کا ثواب ملے گا، سوائے اس کے کہ ڈسپلین باقی رہے گی، سوائے اس کے کہ آپ کے مستقبل کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. اور جو طلباء اس عمر میں اپنے آپ کو منظم نہیں کرتے پوری زندگی ان کی زندگی میں منظم نہیں ہو پائیں گے. جو طلباء اسی وقت سے نماز کے پابند ہو جائیں، کلاس کے پابند ہو جائیں، ہاسٹل کے نظام کی پابندی کریں، مطبخ کے نظام کی پابندی کریں، ایسے طلباء اس ٹریننگ سے دوچار ہونے کے بعد پوری زندگی کہیں بھی رہیں گے نظام کو برتنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. بہت سے طلباء کیا کہتے ہیں، بڑی سختی ہے ادارے میں، بڑی پریشانیاں ہیں، بہت شدت ہے، یہ مت کرو صاحب، یہ مت کرو صاحب، یہ مت کرو صاحب. اگر آپ اسی کو دوسرے رخ سے سوچنے کی کوشش کریں، دوسرے زاویے سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادارہ بڑا اچھا ہے، ادارہ بہت بھلا ہے، ہماری بھلائی سوچتا ہے، ہمیں رہائش دیا، ہمارے سونے کا انتظام کیا، ہماری عبادت کا انتظام کیا، کتابوں کو فراہم کیا، کھانا فراہم کرتا ہے، اساتذہ مہیا کرتا ہے اور ہمارے آرام کا سامان مہیا کرتا ہے. کتنا اچھا ہمارا ادارہ ہے. اور اگر یہ زاویہ سوچنے کا آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے تو یقین جانو آپ کامیاب ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نکتہ چینی کرنے سے بچ جاؤ گے، آپ زبان درازی سے بچ جاؤ گے اور قانون کو برتنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ادارہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ادارہ آپ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ وقت کی پابندی کرو، آپ نماز کی پابندی کرو، آپ کلاس کی پابندی کرو، آپ مطالعے کی پابندی کرو، آپ کھانے کے ڈسپلین کو باقی رکھو، آپ ہاسٹل کے نظام کو باقی رکھو. یہ چیزیں اگر آپ نہیں کرتے ہو تو یقیناً اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہو. جو طالب علم مجرم نہیں ہے، ایسے طالب علم کو ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں. آپ بے خوف و خطر پورے اطمینان کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ اپنا کام کرو. آپ کو مسجد آنا ہے شوق سے جاؤ، ہاسٹل جانا شوق سے جاؤ، کھانا کھانے جانا عزت سے جاؤ، اور دیگر کاموں کے لیے اگر آپ کو مکلف کیا گیا تو آپ یہ مت محسوس کرو کہ آپ پر کوئی دباؤ ہے، بلکہ اپنے آپ کو فری محسوس کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرو. پھر آپ دیکھو کہ آپ کے لیے یہ سختیاں نہیں ہیں بلکہ آپ کے لیے سہولتیں ہیں ساری ہیں. آپ جانتے ہو کہ دنیا میں کوئی بھی نظام آپ کو ایسا نہیں ملے گا کسی بھی پوسٹ پر جانے کے بعد، کسی بھی منصب کو جانے کے بعد، کسی بلندی کو چھو لینے کے بعد آپ ایسا محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ فری رہیں گے، قانون کی پابندی نہیں کرنا ہوگا. آپ اپنے گھر کی مثال لو، والد صاحب کو اور والدہ کو جتنی فکر ہوتی ہے، جتنا وہ کام اور محنت کرتے ہیں، اگر گھر کا ہر شخص اتنی محنت کرے تو گھر پر رونق ہو جائے گا. والدہ آپ کو کیوں ڈانٹتے ہیں، والدہ آپ کی کیوں منع کرتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ چاہتی کہ آپ ترقی کر جاؤ. یہی مثال کسی کمپنی کی ہے اور یہی مثال ادارے میں رہنے والے انسانوں کی ہے کہ ادارے میں رہنے کا ایک نظام اور سسٹم ہے، اس نظام کو برتنا ہمارے لیے مفید ہے، لہذا اس کو ہم برتیں. عزیز طلبہ، برا ابن عازب کی حدیث آپ نے سنا ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انسانوں کو علماء کے تئیں اور معلمین کے تئیں کیا ہدایت کی ہے. میں اس کو تفصیل سے نہیں پیش کرنا چاہتا، میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کے بارے میں جس بات کی خبر دی ہے، اگر اس بات پر ہمارا ایمان ہو جائے تو ہم معلم کا احترام کرنے سے پیچھے نہیں رہیں گے. اور معلم کو بھی اگر اپنی قیمت کا اندازہ ہو جائے
تو यकीनी तौर पर मुअल्लिम अपने हुकूक की, अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में तक़सीर और कोताही नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो इंसानों का जिक्र हुआ, एक आलिम दूसरे आबिद। अल्लाह के रसूल ने दोनों का जिक्र सुनने के बाद ऐलान कर दिया, फ़ज़लुल आलिम अलल आबिद का फ़ज़लि अला अदनाकुम। एक आलिम की आबिद पर ऐसी ही फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम में से किसी आम सहाबी पर हो। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दीन हत्ता अल हूता फी अल बहरी व हत्ता नमला फी जुहरिहा लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसके फरिश्ते, आसमान व ज़मीन की तमाम मखलूक़ात, यहाँ तक कि पानी के अंदर मछलियाँ और सुराखों में चींटियाँ, ये सारी की सारी मखलूक़ात मुअल्लिम खैर को दुआ से नवाजती हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, खैर की रहनुमाई करने वाले के लिए कौन कौन सी चीज़ें दुआ करती हैं। चींटियाँ सुराखों में दुआ करें, मछलियाँ समंदरों में दुआ करें, आसमान और ज़मीन के बाशिंदे उस पर रहमत की दुआ करें, और अल्लाह और उसके रसूल खुद उसके लिए खैर की दुआ करें। इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है अज़ीज़ तलबा। लिहाजा अगर ये फजीलत आप हासिल करने के ख्वाहां हो तो आपको एक मुअद्दब तालिब इल्म बनकर ज़िंदगी गुजारना होगा, तब जाकर के आप ये फजीलत हासिल करोगे और ये खैर आपको मिलेगा। बहरसूरत मैं कहना ये चाहता था कि हमें पूरा एतमाद होना चाहिए, पूरा यकीन होना चाहिए। किस बात पर यकीन और एतमाद? हमारी जो यूनिफॉर्म है, हमारा जो लिबास है, लिबास से मेरी मुराद अगर लड़का है तो उसके लिए कुर्ता और पैजामा है, टोपी है, अपने बाल को सही रखे और अपने कपड़े को इस्लामी कपड़े की रोशनी में पहनने की कोशिश करे। और अगर लड़की और तालिबा है तो तालिबा के कपड़े को आप जानते हैं, इस्लाम ने तालिबा के या औरतों के लिबास के सिलसिले में जिन हिदायत को बयान किया है, उन हिदायत का खुलासा कुछ इस तरह से होगा कि एक औरत का लिबास जो बुलूगत में कदम रख दे या सिन्ने शऊर को पहुँच जाए, इंतहाई ढीला ढाला होना चाहिए। और ऐसा लिबास जो लिबास बारीक ना हो, मोटा हो, ढीला ढाला हो, मोटा हो। और तीसरी बात यह है कि उसके पैर को और जिस्म के आधा को मुकम्मल तौर पे छुपा देने वाला हो। इस्लाम पर हमें फ़ख्र होना चाहिए, हम मर्दों को, कि हमारे मर्दों की जिम्मेदारी है कि टखने को खोल कर रखें। औरतों को फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे रसूल से जब सवाल किया उम्मे आतिया ने कि हम में से कोई औरत अपने कपड़े को अपने पैर से कितना नीचे लटकाए, क्योंकि मर्दों के बारे में तो ये तालीम हुई कि अपने टखने से ऊपर अपने कपड़े रखें, तो औरतें क्या करें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तुर्खी शिबरा, कोई भी औरत अपने कपड़े को अपने पैर से एक बालिश ज़मीन पर लटका कर चले। फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं, वलो अरखत दिराअन लकाना अस्तर लहा, और अगर वो एक बालिश से ज़्यादा एक हाथ नीचे लटका कर चले तो उसके हक में ज़्यादा पर्दा पोशी का सबब है। तो ये फरमान किसका है? ये फरमान हमारे रसूल का है। लिहाजा एक औरत को इस पर पूरा इत्मीनान होना चाहिए, एक तालिबा को इस पर पूरा वसूख होना चाहिए, इस पर इत्मीनान होना चाहिए कि मेरे रसूल का फरमान है। लिहाजा मैं कोई भी ऐसा लिबास ज़ेब-ए-तन करने की कोशिश नहीं करूँगी जो लिबास हमारी इस्लामी तालीमात के मुखालिफ हो। एक औरत के लिबास के बारे में नबी ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि औरत का लिबास किसी भी शक्ल में मर्दों के लिबास के मुशाबे ना हो। यानी जिस लिबास को ज़ेब-ए-तन करने के बाद हमारा मुआशरा ये फैसला कर दे कि ये लिबास लड़कों का लिबास है, ऐसा लिबास और लड़कियों के लिए पहनना नाजायज़ है। और उसी के बरअक्स ऐसा लिबास जो लड़कियों के लिए मखसूस हो, अगर कोई लड़का उस लिबास को पहनता है तो इस्लामी शरीयत ऐसे लड़के को दयूस कहती है और लानत भेजी गई ऐसे लड़कों पर, ऐसी लड़कियों पर जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फैसले के मुताबिक तो लड़की बनाया, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फैसले के मुताबिक तो लड़का बनाया, लेकिन चाल ढाल के एतबार से, तबीयत इख्तियार करने के एतबार से, रहन सहन के एतबार से, गुफ्तगू के एतबार से, गुफ्तार और किरदार के एतबार से वो मर्द अपने आप को औरतों में ढालने की कोशिश करता है या वो औरत अपने आप को मर्दों में ढालने की कोशिश करती है। इसीलिए इस्लाम ने दोनों का अलग अलग जाविया मुकर्रर कर दिया। औरतों के हुकूक अलग हैं, मर्दों के हुकूक अलग हैं, और इस्लाम ने जिन हुकूक को बयान किया उन हुकूक पर अमल पैरा होने में हमें पूरा एतमाद होना चाहिए। आज आप जानते हो अगयार, मगरबी क़ुव्वतें, इस्लाम दुश्मन ताकतें हमारे इस्लामी शिआर को
कमतर साबित करने की कोशिश करती हैं। कभी ये बात पेश की जाती है कि लिबास के एतबार से सबको एक सा लिबास पहनना चाहिए ताकि एहसास कमतरी का इंसान शिकार ना हो। और ये बात कौन कहता है? ये बात ऐसा शख्स कहता है जिसकी ज़िंदगी जुल्म से भरी हुई हो, जो इंसानियत का कातिल हो, जो इंसान सोसाइटी में रहते हुए भी ऐसा लिबास ज़ेब-ए-तन करता है कि उस सोसाइटी में उसके अलावा कोई और उस लिबास में मलबूस नज़र नहीं आता। आप जानते हैं कि आपके पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में मदारिस के तलबा के बारे में बात कही गई कि ऐसा लिबास पहने जिस लिबास को पहनने के बाद एहसास कमतरी का वो शिकार ना हो। कहने वाला कौन सा लिबास पहनता है? कहने वाला शख्स अगर अपनी ख़ास मजलिस में होता तब भी गेरुआ रंग का लिबास पहनता है, जो लिबास उसकी सोसाइटी के लोग भी नहीं पहनते, जो लिबास उसके मिंबरान भी नहीं पहनते, तो पूरे 500 से ज़्यादा मिंबरान के बीच में खड़ा होकर अपने तन्हा लिबास की ज़िबाइश करता है वो, और मुसलमानों को राय देता है कि मुसलमान अपने मदारिस में ऐसे लिबास को ज़ेब-ए-तन कराने की कोशिश करें जिस लिबास को पहनने के बाद इम्तियाज़ बाकी न रह जाए। खुद तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर इम्तियाज़ पैदा करता वो शख्स और दूसरों को राय देता है। तो मेरे भाइयों, आप इन बातों के धोखे मत आइए। आप इन बातों को सुनकर अपनी इस्लामी तालीमात की पाकीज़गी, उसकी हक़ानियत के सिलसिले में किसी भी तरह की एहसास कमतरी का शिकार ना हो। क्यों? ये निज़ाम रब्बानी है, अल्लाह ने इसको नाजिल किया। इस निज़ाम की दावत हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, मुअल्लिमात, आप मेरी बात को सुनिए। इस्लामी लिबास, जो लिबास अल्लाह की नज़र में महबूब हो, उस लिबास को इख्तियार करने की कोशिश करो ताकि आप कामयाब खातून बनो। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इस्लाम ने जो तालीमात हमारे लिए बयान की हैं उन पर अमल पैरा होना ही हमारे लिए कामयाबी की बात है। तालिबात इस बात को महसूस करें कि उन्हें हया, गैरत, पाकीज़गी, अपनी इफ़्फ़त और तहारत का मुकम्मल ख्याल करना होगा। किसी भी शक्ल में एक इस्लामी खातून अपने आप को बेपर्दा करने की कोशिश न करे, क्योंकि आप जानती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नती औरतों के बारे में जो बशारतें सुनाई हैं, उन बशारतों का हक़ उन्हें क्यों हासिल हुआ? इसलिए कि उन ख़वातीन ने अल्लाह के हुक्म को मानने में किसी भी तरह की तरद्दुद का इजहार नहीं किया, बल्कि रसूल का हुक्म आते ही उसकी पासदारी की। लिहाजा हमारी तालिबात किताब व सुन्नत के इल्म पर उनको मुकम्मल एतमाद होना चाहिए, और सोसाइटी से बाहर निकलते हुए हमारी तालिबात के अंदर ये एहसास शिद्दत से महसूस होना चाहिए कि वो कहीं भी बिला ज़रूरत जाने की कोशिश नहीं करेंगी, और अगर घर में हैं कहीं उनको जाने के लिए मदऊ किया गया तो ऐसी जगह जाने की हरगिज़ कोशिश न करें जहां उनके साथ कोई उनका महरम ना हो। बगैर महरम के सफ़र करना और बगैर महरम के रात गुजारना, ये तमाम की तमाम बातें हमारी इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा एक तालिबा अपने आप को इस्लाम की पैकर बनाए ताकि उसके घर वाले, उसके पड़ोस के लोग और उसके गांव के लोग उसे नमूने में पेश करें, और उसकी ज़िंदगी को देखने के बाद ये कह सकें कि ये तालिबा है जो रोए ज़मीन पर चलती है लेकिन इफ़्फ़त की दावत देती है, पाकीज़गी की दावत देती है, तहारत की दावत देती है, इस्लामी लिबास का प्रचार करती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें उसके लिए बेहतरी की हैं। वक्त हो गया शेख, क्या वक्त हो गया? मैं आपसे कह रहा था मेरी अजीज़ बहनों, आप ज़रा मेरी बात को सुनिए कि इस्लाम ने एक औरत को सख्ती से इस बात का हुक्म दिया कि कोई भी औरत जब घर से बाहर जाए तो उसे जीनत का लिबास पहनकर नहीं जाना है, उसे खुशबू इस्तेमाल करने के बाद नहीं जाना है, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना कर दिया कि अय्युमा इमरातिन इस्तातरत व मर्रत बिरिजालिन लियजिदू रिहाहा फहिय ज़ानिया, जो औरत भी खुशबू में मुअत्तर होने के बाद अपने आप को घर से निकाले, मर्दों से उसका गुजर हो, तो ऐसी औरत गोया जिना की दावत देने वाली है। इससे ज़्यादा घटिया बात हमारी ज़िंदगी में क्या होगी कि हम लोग अपनी चाल ढाल के एतबार से दावत ज़िना पेश कर दें, और वो भी रसूल की ज़ुबान पर। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस जिसमें आपने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी खातून की नमाज को कबूल नहीं करता, जो खातून खुशबू में मुअत्तर होने के बाद अल्लाह के घर में दाखिल होकर नमाज पढ़ना चाहती हो, यहाँ तक कि वो अपने घर लौट कर जाए और गुस्ल करने के बाद अपने जिस्म से खुशबू को मुकम्मल ज़ाइल कर ले, फिर वो आकर नमाज पढ़े। यहाँ आप गौर करो,
अल्लाह की सबसे मुकद्दस जगह मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए हाजिरी का मौका है। ऐसे नाजुक मौके पर भी इस्लाम औरतों को इस बात का हुक्म देता है कि खुशबू लगाकर कोई औरत अगर जाती है नमाज पढ़ने के लिए तो अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करता, यहाँ तक कि वो लौट कर घर जाए और गुस्ल करने के बाद फिर आकर नमाज पढ़े। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद से लौट रहे थे, एक बांदी से मुलाकात हो गई जिस बांदी के जिस्म से खुशबू फूट रही थी। उन्होंने सवाल किया, ऐन तुरीदीन या मतल जब्बार, अय जब्बार की बांदी तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा मैं मस्जिद जा रही हूँ। फिर वो कहते हैं अलिहादा तातरते, मस्जिद जाने के लिए तुमने इतर इस्तेमाल कर रखा था? वो कहती हाँ। फिर कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे औरत की नमाज को कबूल नहीं करता जो औरत खुशबू लगाने के बाद मस्जिद जाती हो नमाज पढ़ने के लिए, यहाँ तक कि वापस अपने घर जाए और गुस्ल करके फिर नमाज पढ़ने आए। यहाँ से मालूम हुआ कि औरत अगर अपने घर से बाहर निकलती है तो खुशबू से मुअत्तर होकर निकलना उसके हक में इस्लाम हराम करार देता है। ये बात क्यों है? ये इसलिए नहीं कि औरतों के हुकूक को पामाल कर दिया गया, बल्कि औरत का ये बुनियादी हक है कि वो अपने घर को इख्तियार करे, अपने घर को लाजिम पकड़े, और उसका घर को लाजिम पकड़ना है दरअसल उसके लिए फितने से सलामती का बाइस होगा। आज हम लोग रोजमर्रा सुनते हैं कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी कर लेती हैं या मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिमों से शादी कर लेते हैं। कितनी बुरी बात है, कितनी बेहयाई की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो इतना अजीम बनाया कि जहन्नम के गड्ढे से निकालकर जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया, ईमान की दौलत से मालामाल कर दिया, और ईमान की दौलत से मालामाल होने के बाद हम लोग फिर कुफ्र में लौटना चाहते हैं, हम लोग फिर जहन्नम में दाखिल होना चाहते हैं। मेरे रब ने तो ऐलान कर दिया था वला तनकिहुल मुश्रिकात हत्ता युमिन, मुश्रिका औरतों से हरगिज शादी मत करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएं। और इसी के बरअक्स इसी के बिलमुकाबिल अल्लाह ने कहा कि मुशरिक मर्दों से तुम मुशरिक मोमिना औरतों की शादी मत करो यहाँ तक कि वो मर्द ईमान ले आए। इस्लाम ने गोया इस शादी को हराम करार दिया। अब अगर कोई बालिग लड़की या कोई मुस्लिम औरत किसी गैर मुस्लिम से कोई निकाह करती है, उसके साथ राह फरार इख्तियार करने के बाद अपनी आइली जिंदगी कायम करना चाहती है, तो उसे जानना चाहिए कि ये हराम खोरी है, ये हराम कारी है, ये बदकारी है, ये फहशकारी है, और फहशकारी के साथ साथ ये कुफ्र और शिर्क को इख्तियार करना है। लिहाजा एक मर्द गैर शादीशुदा रह ले, अपनी शहवत को रोज़े के जरिए मुकम्मल कर ले, रोज़े के जरिए उसको ख़त्म कर ले, ये बात तो उसके लिए दुरुस्त होगी, लेकिन कतई ये बात दुरुस्त नहीं हो सकती है कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया और मुशरिका से शादी कर ले, अल्लाह ने मोमिना और मुस्लिमा बनाया वो मुशरिक से शादी कर ले, ये बात कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है। और आप जानते हैं कि इस बेहयाई का नुकसान हमारे पूरे मुआशरे को उठाना पड़ रहा है। आज मॉब लिंचिंग की जो सूरत हाल है, आज इस्लाम कबूल करने के सिलसिले में जो रुकावटें हैं, आज लव जिहाद का जो नारा है, दरअसल लव जिहाद के नारे या इस तरह की चीज़ें जो मुसलमानों के खिलाफ आम करने की कोशिश की जाती है, इस्लाम में कहीं से भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं। जब इस्लाम में इस बात को हराम करार दिया गया कि कोई मुस्लिम मर्द मुश्रिका औरत से शादी नहीं कर सकता, कोई औरत जो मुसलमान हो गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि दीन का फ़र्क ये कतई तौर पर जायज़ नहीं करार देता कि ऐसी शादियां रचाई जाएं। लिहाजा कुफ्र इख्तियार करके, शिर्क इख्तियार करके फहशकारी के रास्ते को ढूंढना, ये दुनिया भी बर्बाद करना है और आखिरत को भी वीरान बनाना है। आप जानते हैं जो लोग अपनी जवानी के आलम में, जवानी के नशे में चूर गंदी हरकतें करते हैं, उन्हें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, बड़ी दिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है, मुस्तकबिल की ज़िंदगी उनकी तबाह हो जाती है। आप मुआशरे पर निगाह डालिए, आपको पता चलेगा। लिहाजा अपनी हया को बाकी रखते हुए, अपने वालिदैन की तालीमात की रोशनी में, अपने ख़ानदान की वजाहत की रोशनी में ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करो, और ये इदारे जो तालीमात देते हैं उन तालीमात पर अमल पैरा हो जाओ ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजरे। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं तफसील से बात आपके सामने रखूं। मैं सिर्फ कहना चाहूँगा तालिबात से और तलबा से कि अपने वक्त को मुनज़्ज़म करो, मुताले के शौकीन बनो, सवाल की आदत डालो, एहतराम के साथ असाज़ा के साथ पेश आओ, और परेशानियां जो आती हैं, जो दुख आपको झेलना पड़ता है, उसको आप सब्र से झेल जाओ।
मसलन आपको खाना कभी बेवक्त मिला, कभी खाने में कुछ कमी हो गई, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मतबख में होता है, आपके घर में भी इस तरह सूरत हाल पेश आती है। कभी माँ ने खाना बनाया, नमक ज़्यादा हो गया, कभी मसाला ज़्यादा हो गया, कभी कुछ कच्चा रह गया, कभी अच्छा खाना नहीं बना। ये सारी चीज़ें घरों में भी पाई जाती हैं। लिहाजा जब घरों में इस तरह की चीज़ गवारा है तो मदरसे में लाजमी तौर पे आपकी चाहत के मुताबिक, आपकी मर्जी के मुताबिक खाना नहीं पेश कर सकता इदारा। क्यों? इदारे के बारे में जो गुमान होता है बहुत से लोगों को, बहुत पैसा है, ये बातें खाम ख्याली है बेटा। अगर आप जिम्मेदार बन जाओगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से इदारे चलते हैं। अपने वालिद से पूछो कि अब्बू आप घर कैसे चलाते हो, तो आपके वालिद मोहतरम जवाब देंगे कि आपके हर चाहत को पूरी नहीं कर सकते। जब घर के जिम्मेदार अपने चंद लोगों की जिम्मेदारी पूरी करने पर कादिर नहीं है, तो फिर इदारे के जिम्मेदारान तलबा की हर ख्वाहिश को पूरा कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ आप अपने हदफ पर नज़र रखिए, तालीम की अहमियत को समझिए, खाने की अहमियत को मत सोचिए कि खाना आज ये क्यों नहीं मिला, कल वो क्यों नहीं मिला, रिहाइश ऐसी क्यों वैसी क्यों नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे भाइयों आपके लिए नुकसानदेह हैं। लिहाजा आप जो भी खाना मैसर है उसे आप खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसी खाने में आपको क़ुव्वत मिलेगी। मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा खाना या बहुत अच्छे खाना ज़रूरी नहीं कि हमारे अंदर ज़हानत पैदा करे, हमारी जिस्मी सलाहियत बढ़े। बचपन में मुझे याद आता है कि हमारा एक पड़ोसी था, उस पड़ोसी के घर ये तौफीक नहीं होती थी कि माचिस की कीली मौजूद हो, वो आग जला सके अपनी। हमारे घर से बराबर आग ले जाया करते थे वो लोग। मुश्किल से रोटी अगर बनती थी तो मिर्च और नमक नहीं होता था कि चटनी बन जाए बच्चे खा लें। हमारे घरों से या तो हम लोग भेजते या उनकी औरतें आकर ले जाती। वो बच्चे अक्सर चटनी रोटी खाते थे, लेकिन जिस्मानी एतबार से पड़ोसियों के तमाम लड़कों से ज़्यादा मजबूत थे, पड़ोसियों के तमाम लड़कों से ज़्यादा क़ुव्वत थी, जिस्म उनका बेहतरीन था और पढ़ने मेहनत किया तो कामयाब हो गए। तो मेरे भाइयों मैं कह रहा था कि ये खाना जो आपको मिलता है आपके घर के मुताबिक नहीं हो सकता, आपके जहन के मुताबिक नहीं हो सकता। जो मिल जाए कि आपकी रीढ़ सीधी है, आपकी हड्डी कायम है, वो काफ़ी है। हम लोग आलिया पढ़ते थे मऊ में पढ़ते थे, ये सच्चा वाक़या है और हमारे शेख गालिबन इसके गवाह भी होंगे। मैं आपको बताऊं कि तलबा खाने में रोज़ महसूस करते थे कि दाल इतनी मतलब नौज़बिल्ला घटिया कहती हुई शर्म मुझे आती है कि अल्लाह की नेमत थी। बहरहाल दाल ऐसी थी कि उसको चावल से खाना मुमकिन नहीं था। चलो जैसी भी दाल रही हो, उसमें पानी ज़्यादा था, फलां था, उससे बहस नहीं है। उसमें छोटे छोटे कीड़े थे। आपने देखा होगा मटर की दाल में अगर बहुत दिनों की हो जाए तो बारीक किस्म के कीड़े पड़ जाते हैं। तो मतबख में कोई औरत नहीं थी जो गल्ले को साफ़ करती, कीड़े निकालती और फिर दाल बनती, वो कीड़े खाने में ना मिलते। एक करछुल दाल मिलती थी हमारे अपने इस्लाम में, एक करछुल दाल, और जब गोश्त होता तो एक बोटी गोश्त और एक करछुल शोरबा मिलता था। एक करछुल नाप कर उसमें आपका पेट भरे, आप खाना खा सको, नहीं खाओ, इससे बहस नहीं थी। उसके बाद दोबारा आपको कुछ नहीं मिलना है। ये सूरत हाल थी। और दूसरी सूरत हाल ये थी कि अगर खाने के वक्त में आप नहीं पहुंच सके तो आप भूखे रहोगे या खाना खाओगे, इससे इदारे को कतई बहस नहीं थी। मगरिब बाद लाइट नहीं है तो आप पढ़ोगे या सोओगे या टहलोगे, इदारे को बहस नहीं थी उससे। अगर दाती आपके अंदर दिलचस्पी है तो मोमबत्ती आपने खरीदा, पढ़ रहे हैं, या लाइट के रहमो करम पर मुंतज़िर हैं कि हम पढ़ रहे हैं। आज तो अल्लाह का शुक्र है, लाइट अल्हम्दुलिल्लाह है, पढ़ने का माहौल है, जगहें हैं और लाइब्रेरियाँ हैं, किताबें हैं, आप जितना चाहे पढ़ सकते। तो मैं कह रहा था कि तलबा ने एक साजिश की कि खाना बहुत ख़राब है, हम लोग भाग चलें। फिर कुछ लोगों ने भागना अक्लमंदी नहीं है, शिकायत करते हैं और शायद इस्लाह हो जाए। तो शिकायत करना भी बहुत टेढ़ी बात थी। उस वक्त बड़ी सख्तियाँ थी, मतलब जैसा आप कहते हो कि सख्ती है, हालांकि वो सख्तियाँ नहीं थी, वो इदारे वालों की इम्कानिया की बात थी कि इदारे के पास इम्कानियात उतनी ही थी, लिहाजा उन्होंने क्या था। तो मुझको लोगों ने मुंतखब किया कि अगर अब सभी जाकर बात करें तो मजाज साहब मान जाएंगे और मोहम्मद साहब भी मान जाएंगे, क्योंकि इसी को मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। और मुझे ये नहीं थी कि मुझे क्यों मानते हैं, मुताले का शौक़ था, शायद इसलिए मानते रहे हों, या थोड़ा मोड़ा कोई प्रोग्राम हुआ तो उसमें नुमाइंदगी कर दी, कोई अरबी मेहमान आए तो उनका तर्जमा कर दिया वगैरह वगैरह। तो तलबा ने कहा कि अब्दुल समी के अलावा कोई दूसरा बात करेगा तो बात सुनी नहीं जाएगी, लिहाजा उसी को भेजो और वही बात करें। मैं गया मजाज साहब के ऑफिस में, डरता हुआ, सहमा हुआ, दाखिल हुआ, सलाम किया। कहने लगे कैसे आना हुआ? मैं कहा मजाज साहब आ तो गया हूँ लेकिन अर्ज़ कैसे करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और सिर्फ गुजारिश आपसे ये है कि खाना जो मिलता मतबख में वो जैसे भी हो उससे हमें कोई बहस नहीं है, लेकिन कीड़े दाल में होते हैं,
अगर कीड़े कम से कम ना रहें तो तलबा खा लें किसी तरह से। तो मजाज साहब ने क्या जवाब दिया जानते हो तुम लोग? मजाज साहब ने पहली बात कहा बेटा खाना इसलिए नहीं देते हैं कि तुम लोग मोटे हो जाओ, खाना इसलिए नहीं ताकि तुम जो है बहुत फरबा हो जाओ, ऐसी बात है तुम्हारे घर का खाना तुम्हारे लिए काफ़ी है। खाना हम इतना देते हैं कि तुम खड़े हो सको, तुम्हारी कमर सीधी रहे, बाकी ग़िज़ा हम तुमको नहीं दे सकते हैं। हाँ ठीक है, कीड़े की बात है तो मैं बात करूँगा, और उसको साफ़ कराने के बाद अगर वाकई बात यह है तो दाल वापस करा करके दूसरी दाल मंगाई जाएगी। तो उनका ये जवाब कि इतना हम खाना देते हैं कि तुम्हारी कमर सीधी रहे, और जान लो कि तुम्हारी जहानत पे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज हमारे बहुत सारे साथी जो कामयाब हैं बेचारे, वो खाना भूल गए होंगे, वो सोना भूल गए होंगे कि एक कमरा था जिसको हम लोग प्लेटफार्म कहते थे, मजाक में क्या कहते हैं हम लोग, प्लेटफार्म। उसमें इतनी जगह होती थी उस कमरे में, उस प्लेटफार्म पर सोने की जगह इतनी थी कि अगर करवट लेते तो शायद दूसरे तालिब के जिस्म पर हमारा पैर जाता, हमारा जिस्म जाता, ये सूरत हाल थी वो। और प्लेटफार्म की कैफियत क्या थी, जब इदारा तरक्की कर गया तो बाउंड्री थी, और बाउंड्री और दीवार के बीच आप जानते हैं कितना फासला होता है, छः यानी क्या कहते हैं उसको, फीट का, 6 फीट का फासला था बाउंड्री और दीवार में। ज़रूरत महसूस हुई कि तलबा का हॉस्टल बढ़ाना चाहिए, तो उसी बाउंड्री की दीवार को ऊंची करके छत ढाल दी गई, तो जो गैप था 6 फीट का वही कमरे में इस्तेमाल हुआ। तो अब 6 फीट की जो लंबाई चौड़ाई थी, उसमें अगर तकिया रखकर बिस्तर लगाकर कोई सोता तो सर इस दीवार से टकराता और पैर उस दीवार से टकराता, ये सूरत हाल थी। लेकिन जिन लोगों ने सब्र किया, मेहनत से पढ़े, आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। और जो लोग भाग गए, जिन लोगों को ये शिकवा था कि प्लेटफार्म है जनाब, बहुत तंग कमरा है, खाना अच्छा नहीं है, तालीम छोड़ के भागे। अभी मैं नेपाल में एक आध लड़कों से मेरी मुलाकात हुई, नवगढ़ में एक आध लड़कों से मुलाकात हुई, बिहार के एक आध लड़कों से मुलाकात हुई। मुझे अफसोस हुआ, रोना आया कि मेरे ही साथी मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे साथ घूमते थे, खेलते थे, आज बेचारे लेबर का काम करते हैं, आज बेचारे नालियाँ साफ़ करने पर मामूर है। क्यों? तालीम छोड़ के भाग गए। जज्बा था, एक जोश था कि नहीं बर्दाश्त करें, भाग जाएंगे। तो मेरे भाइयों, इन बातों को जहन से निकाल दो, सब्र से काम लो, हिम्मत से काम लो, अज़ाइम को बुलंद रखो, मुताले का शौक़ पैदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी देगा और आपके अय्याम गुजर जाएंगे, ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको इसी तरह खाना मिलेगा, इसी तरह की रिहाइश मिलेगी। शायद जस्ता जस्ता मैंने बहुत तवील गुफ्तगू की, इतनी तवील गुफ्तगू करना शायद इतनी तवील गुफ्तगू करना मैं तो बहरहाल यानी मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मोहब्बत में शायद बोलता चला जाता हूँ और एहसास भी नहीं होता है। और मैंने जो गुफ्तगू शुरू किया था कि इदारा 3 चीज़ों का नाम है, उसमें मैंने बताया था तलबा और मुअल्लिमीन और फिर इंतज़ामिया। मुअल्लिमीन के बारे में बहुत सारी बातें, इंतज़ामिया के सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूँकि वक्त भी शायद बड़ी तेज़ी से गुजरता है, इसलिए मैं तफसील न देकर 12:19 हो गए शायद, तो मैं बहुत तफसील न देकर सिर्फ़ अपनी बिरादरी यानी असातिज़ा की बिरादरी से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक उस्ताद हूँ और मैं चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस्ताद होने का जो हक़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मुझे तौफ़ीक़ दे, और हमारे इन इख़वान को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की तौफ़ीक़ दे कि हम लोग अपनी तदरीस के फ़राइज़ को जो उसका तकादा है उस तकादे के मुताबिक पूरी करें। अल्लाह हमें इस बात की तौफ़ीक़ दे, हौसला दे, हुनर दे, और अल्लाह उसे कबूल करे। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा भी ये बात, शायद उन बातों को याद करना मुनासिब ना हो, मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा कि ये तलबा हमारे गले में अमानत हैं, और अमानत का ज़ाहिर है जो तकादा है उसे बयान करने का वक्त नहीं। आप उस तकादे को समझते हो, उस तकादे को आप पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। और जब तक इदारे से आप मंसूब हैं, इदारे के हर तरह की हमदर्दी, इदारे की भईख्वाही, इदारे की नसीहत और इदारे को तरक्की के रास्ते पर ले जाना, इसकी फ़िक्र हर उस्ताद को होनी चाहिए। और ये चीज़ दिलचस्पी और मोहब्बत के ज़रिए पाई जाएगी। अगर इदारे से मोहब्बत है, दिलचस्पी हमें तालीम में, तो यकीनी तौर पर हमारा हर कदम, हमारा हर जुमला, हमारी हर कोशिश इदारे और तलबा की तरक्की के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह अंजाम पाएगा। मुझे यकीन है कि हमारे असातिज़ा जो इस मदरसे के असातिज़ा हैं, जो मुअल्लिमात हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी महसूस करते होंगे। बस थोड़े से सब्र की ज़रूरत है कि तलबा जो हॉस्टल में रहते हैं, आपसे कसरत से उनका इत्तिसाल है, हमेशा उठना बैठना, आना जाना, मस्जिद आए, क्लास में गए, फला गए, तो मुआदहा कसरत से होता है। और जब मुआदहा कसरत से किसी का होता है तो उसकी हैबत धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, उससे मुँह लग्गू हो जाते हैं लड़के। लिहाजा इस बात की कोशिश हो कि ज़्यादा मुँह लग्गू ना होने पाएँ बच्चे,
और अपने एक फासला बरकरार होना चाहिए उस्ताद और तालिब के बीच, लेकिन ऐसा फासला नहीं जो असातिज़ा को मगरूर बना दे, जो असातिज़ा को तलबा से इस्तिफ़ादा करने की राह में रुकावट बन जाए, ऐसा फासला नहीं। लेकिन कम से कम किसी हद तक ऐसा फासला होना चाहिए कि एक हैबत बागी रहे, एक तौक़ीर बागी रहे। उस तौक़ीर के साथ आप तलबा के साथ पेश आइए। और याद रखिए, जो उस्ताद तलबा के तई जितना हमदर्द होगा, जितना नासे होगा, और तलबा की इस्तिलाह में जितना शदीद होगा, उसी के बक़द्र उसका रोब होगा, उससे लोग फ़ायदा उठाएंगे। और उसके इल्मियत का रोब, सबसे बड़ा रोब क्या है? आम तौर पर मदारिस में एक मिजाज है कि उस्ताद के अंदर सब्र की किल्लत है, सलाहियत की कमी है, फुकदान है, तलबा के सवाल से घबराहट है, बार बार सवाल करने से वो गुस्सा हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हम लोग खुद पढ़ते थे। एक के बाद से माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा, हमारे साथ इकराम यहाँ मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह और तलबा हैं, चूँकि ये मेरा इदारा है, मेरा घर है और मेरे बच्चे हैं, इसलिए मैं जो बात महसूस करता हूँ उसको फ्रेंकली बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहूँगा। माजरत के साथ अगर शायद बेअदबी हो बाद लोगों के लिए, हमारे उस्ताद से, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे उस्ताद से पढ़ाते थे तो अरबी ग्रामर में कमज़ोर थे बेचारे। तलबा ने एक बार साजिश किया कि एक कमज़ोर तालिब इल्म को मुंतखब किया कि यही बड़ा जरी तालिब इल्म है, क्यों ना उसको मुंतखब किया जाए कि कल के दर्स में शेख से सवाल करे, शेख इस इबारत को मैं नहीं समझ सका। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जिस तालिब का इंतखाब किया गया था वो खुद नहीं समझता था। अगर वो समझता तो सवाल करना उसका मुनासिब था, लेकिन थोड़ा बेवकूफ़ था। उसकी बेवकूफ़ी की वजह से तलबा ने कहा कि कल सवाल यही तालिब करेगा कि शेख या मौलाना मैंने जो है इबारत को नहीं समझा, ज़रा फिर से समझा दीजिए। तो किसी ने कहा ऐसा अगर तुमसे पूछ दिया कि तुम पर ज़रा पढ़ो तो क्या करोगे? तो उसने पढ़ने की कोशिश की, लड़कों ने पढ़ाया, याद कराया, लेकिन फिर भी वो तालिब भूल गया। और उसने क्लास में अगले दिन मौलाना से कहा, मौलाना ये बात मैं नहीं समझ सका, इबारत क्या है, ज़रा दोबारा समझा दीजिए। उसका सवाल ठीक था। यह और बात है कि लड़कों की प्लानिंग थी सवाल करवाने की, मुदर्रिस को तो इसका इल्म नहीं था कि प्लानिंग के तहत सवाल किया जा रहा है। मुदर्रिस का फ़र्ज़ ये था कि उसके सवाल का जवाब देते, समझाने की कोशिश करते, तफ़हीम करते, बार बार तफ़हीम करते। लेकिन क्या हुआ जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फ़ौरन बैठे हुए थे, पैर उठाया, कहा ये पैर देखते हो, ये पैर देखते हो, इसी से तुम्हारा जवाब दूंगा मैं। हालांकि इसकी इस जवाब की ज़रूरत नहीं थी कि मैं इस पैर से जवाब दूंगा, लेकिन क्या था, सलाहियत की कमी थी, जज्बात था, जज्बात के नतीजे में जवाब दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वाक़े को पेश करने के तनाजुर में कि हम तलबा को हम असातिज़ा को बहुत वसी ज़र्फ़ होना चाहिए, सिमात हमारी मजबूत होना चाहिए, हज़म का मादा हमारे अंदर होना चाहिए। तलबा के सवाल पर नाराज़ होना, बरहम होना नहीं, बार बार आप सवाल करने का मौका दीजिए। और अगर जवाब नहीं मालूम है तो कोई यहानत की बात नहीं है, कोई दिल्लत की बात नहीं है, हमारी अपनी इल्मियत की बात है कि हम उस सवाल का जवाब तलाशें, अपने दोस्तों से पूछें, किताबों का मताला करें, अहले इल्म से रुजू करें और फिर तालिब को कल जवाब दें। यकीनन वो तलबा आपका एहतराम करेंगे। ऐसा नहीं कि हर मुदर्रिस, हर मुअल्लिम हर बात को जानता है। मुमकिन है कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें तलबा समझते हैं लेकिन मुदर्रिसीन नहीं समझते हैं। लिहाजा अगर सवाल कोई ऐसा आ जाए जिसका जवाब मुदर्रिस के पास ना हो तो मुदर्रिस को चाहिए कि हिल्म और बुर्दबारी का मुजाहरा करे और उस सवाल का जवाब बाद में देने की कोशिश करे। अगर उस वक्त जवाब नहीं है, तालिब से माजरत कर ले। ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। हम लोग भी पढ़ाते हैं, मुंतही तलबा को पढ़ाते हैं और बसा का सवाल आता है, जवाब मालूम रहता है लेकिन वक्त नहीं है, तलबा से माजरत करते बेटा ठीक है, चलो हर सवाल का पूछना ज़रूरी नहीं है, हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं है, बाद में पूछना, मुझसे तन्हाई मिल लेना, मुझसे फला कर लेना, जवाब देकर टाल जाते हैं लेकिन गुस्सा नहीं होते। गुस्सा होना अपनी अहमियत को खो देना है। लिहाजा मैं मुदर्रिसीन से उम्मीद करता हूँ इस इदारे के मुदर्रिसीन तलबा के तई पूरी जिम्मेदारी का एहसास देंगे, उनके सवालात को गौर से सुनेंगे और तदरीस के लिए हर जायज़ और मुफीद तरीके को इस्तेमाल करें। कभी कभी आप सिर्फ सुनने पर इक्तफ़ा कीजिए, कभी सुनने सुनाने दोनों पर इक्तफ़ा कीजिए, कभी सिर्फ ब्लैक बोर्ड की रोशनी में आप समझाइए और कभी ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करने के बजाय तलबा से लिखवाइए। कई तरीके हैं जिन तरीक़ों को इख्तियार करना तलबा के दिल व दिमाग में मालूमात को इन्हें हाजिर कर देना है। लिहाजा मुदर्रिसीन मुझे यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हसास लोग हैं, आप बासलाहित लोग हैं, आप तदरीस में इन तरीक़ों को इख्तियार करते होंगे, मालूमात भी इन तरीक़ों को इख्तियार करती होंगी। ब्लैक बोर्ड का आप इस्तेमाल कीजिए, तलबा को होमवर्क दीजिए, लिखवाइए। अगरचे आपका मादा लिखवाने से मुताल्लिक नहीं है फिर भी मैं नहीं कहता रोज़ लिखवाइए। आप हफ्ते में 15 दिन में या 10 दिन में आप तलबा कुछ होमवर्क दिए कि बेटा ठीक है मेरी एक किताब है, तुम इसको लिख कर लाओ, तुम इस मौजू पे लिख कर लाओ, तुम इसका तर्जुमा करके लाओ, तुम इसकी इंशा बना के लाओ और तुम ये करके लाओ, तुम वो करके लाओ। इंशा की घंटी नहीं फिर भी आप कह सकते हैं। तो बहरहाल
اور اگر آپ کا مادہ ہے تو اس مادے کے تعلق سے آپ کی صفائی بہت اچھی چیز ہوگی. تو یہ باتیں انشاءاللہ تعلیم کے راستے مفید ہوں گی. لہذا تعلیم کے لیے مشترک طور پہ کوشش کیجیے. ایک اور بات میں کہوں گا اپنے شیخ صلاح الدین صاحب سے, کیونکہ میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں اور اللہ کا شکر احسان بہت بڑا ہے کہ ہم لوگ مدینے کی زندگی سے پہلے سے اب تک ہمارے روابط ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان روابط کو تا حیات باقی رکھے اور ایک دوسرے کی زیارت کا اللہ موقع دے. آخرت میں اللہ رب العالمین ہم سب کی گناہوں پر یعنی معافی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے. میں کہہ رہا تھا کہ اساتذہ باہم کبھی میٹنگ کر لیا کریں, وہ ہفتے میں یا ہفتے میں 2 بار یا ہفتے میں 1 بار یا 15 دن میں 1 بار. کس چیز کے تعلق سے میٹنگ؟ کہ ہم تدریس کیسے کریں اور تدریس میں نئی چیز کیا لائیں, یا طلباء میں کون سے طلباء کمزور ہیں جن کا تعلیم میں دل نہیں لگتا ہے, جی نہیں لگتا ہے, ہم ان کو تعلیم سے کیسے جوڑیں. اگر ہم لوگ ایک میٹنگ کر لیا کریں ہفتے میں اور اس میٹنگ میں کم سے کم طلباء کے بارے میں ہر شخص اپنی رائے پیش کرے کہ میرے رائے میں فلاں طالب علم کا دل نہیں لگتا پڑھنے میں, حاضر نہیں رہتا کلاس میں, فلاں ایسا کام کرتا, فلاں ایسا کام, اس کا ازالہ ہم کیسے کریں, اور اس ازالے کی بہترین شکل آپ پیش کیجیے. مجھے امید ہے کوئی طالب علم کمزور نہیں ہوتا ہے, کوئی طالب علم یعنی ایسا نہیں کن ذہن ہے. ہر طالب علم کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت ہے, اس صلاحیت کو بروکار لانے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں بتاؤں برطانیہ میں کیا نظام ہے, سوئٹزرلینڈ میں کیا نظام, فلاں کیا نظام ہے. کمزور طلباء کو کلاس سے الگ کر کے کیسے مدرسین سمجھاتے ہیں اور ماہر مدرسین کو ان کے حوالے کیسے کیا جاتا ہے, وہ کس طرح پڑھاتے ہیں, آپ اس کو دیکھتے رہتے ہوں گے, آپ اسے دیکھیے. لیکن میٹنگ لازمی ہونی چاہیے ہفتے میں یا 10 دن میں آدھا گھنٹے کی میٹنگ, جس میٹنگ میں آپ تدریس کو اس پر غور کیجیے, نصاب پہ بحث کیجیے کہ نصاب جو ہمارا ہے ہم اس نصاب تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں, کہ ان نصاب کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. اور اگر نصاب بہت طویل ہے اور اس کو پورا کرنا طلباء کو علم سے محروم کرنے کے مترادف آپ سمجھتے ہو تو اس کو کم کر لیجئے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں باہم گفتگو کے ذریعے پیش آئیں. ایک اور بات میں کہوں گا کہ عام طور پر ہماری برادری میں یہ کمی ہے کہ ہم دوسروں کے پیٹھ پیچھے تبصرے کرتے ہیں. طلباء میں عیب ہے اور اساتذہ میں عیب ہے, میں بات بہت صریح طور پہ کہتا ہوں. لہذا کسی کی پیٹھ پیچھے گفتگو کرنے سے باز رہنا ہی ایک کامیابی کی دلیل ہے. آپ جس کے اندر کوئی عیب دیکھیں, الحمدللہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ پڑھاتا ہے, بہت سارے آپ کے روابط ہیں, ان روابط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے آپ تنہائی میں بات کیجیے یا میٹنگ میں جنرلی بات کیجیے, تاکہ وہ محسوس نہ کرے کہ مجھے ٹارگٹ کیا گیا, اور وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لے. یہ انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے, اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے, اور طلباء کی بھی ذمہ داری ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں, عفو درگزر کا مادہ رکھیے, عفو درگزر کا جذبہ پیدا کیجیے. عفو درگزر کرنے کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اغفروا یغفر لکم, تم معاف کرو اللہ کی معافی کے مستحق بنو گے. تو طلباء کو معاف کرنا, اساتذہ کو معاف کرنا, طلباء باہم اپنے بھائیوں کو معاف کریں, یہی ہمارا منہج ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. معافی کے بغیر ہماری زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. لہذا اساتذہ سے میں گزارش کروں گا کہ معافی کا جذبہ پیدا کریں, اپنے دل کو کشادہ رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شر, برائی اور فتنے سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.